چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ثم المیاہ علی خمسۃ اقسام اقسام۔ ثم مانے پھر، ثم مانے ایک چیز جو ہے وہ ترتیب کے لیے ترتیب سے بیان کی جا رہی ہے، اور ترتیب سے جو چیز بیان کی جائے اس کے لیے جو لفظ لایا جاتا ہے ثم لایا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے جانی زید ثم عمرو ثم خالد۔ اب یہ ثم بتا رہا ہے کہ یہ میرے پاس زید آیا ہے، اس کے بعد پھر عمر آیا ہے، پھر اس کے بعد زید آیا ہے۔ اگر یوں کہنا جانی زید و عمرو و خالد، یہ وہ ترتیب کے لیے نہیں آتے، بس یہ کہ میرے پاس زید آیا، عمر آیا، خالد آیا، آئے ہیں، اس میں سے خالد بھی ہو سکتا ہے پہلے، زید بھی ہو سکتا ہے، عمر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا تو پھر کیا لایا جائے گا؟ ثم لایا جائے گا۔ ایک مفہوم۔ دوسرا مفہوم ثم تراخیہ بھی ہوتا ہے، تراخی کے لیے بھی آتا ہے۔ جس کے لیے ایک تو ترتیب کے لیے آتا ہے اور دوسرا کس کے لیے آتا ہے؟ تراخی کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ وضو میں ہم جو ترتیب قائم رکھتے ہیں یہ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہاں کیا ہے؟ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، ٹھیک ہے، وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، وہ ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں آتا، اس وجہ سے ہمارے نزدیک ترتیب فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ ثم ترتیب کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ ثم تراخی کے لیے بھی آتا ہے۔ تراخی سمجھتے ہو بھئی، ایک چیز بیان کر دیا اس کے بعد ہم اس چیز کو بیان کر رہے ہیں، اس کے پیچھے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ رات کو سوتے نہیں ہو، آپ نے موبائل لیا نیٹ والا؟ کیوں نہیں لیا؟ یہ تو نیند تو وہ کرتے ہیں جن کا موبائل نیٹ والا ہو۔ وہ دیکھا ہے، وہ سر رات موبائل ہی دیکھتا رہتا ہے، ادھر نیند بھی کرتا رہتا ہے، اور آپ موبائل بھی نہیں ہے نیٹ والا اور پھر بھی جو ہے نا نیند کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ کب سے یہ شروع ہو گیا مسئلہ؟ پہلے تو نیند نہیں کرتا تھا۔ ثم المیاہ علی خمسۃ اقسام، تو ثم کا معنی کیا ہے؟ کیا چلیے ابھی تو چل رہا ہے، بعد کا پتہ ہے۔ ثم للتراخی، ابھی شرح میں تعامل میں پڑھو گے ثم کس کس کے لیے آتا ہے۔ جس طرح آج کے سبق میں لام کے لیے آپ نے پڑھا کہ لام کتنے معنوں کے لیے آتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ ثم مانے پھر، اور یہ حروف غیر عامل میں سے لفظاً عمل نہیں کرتا، معنوی عمل ہوتا ہے لیکن لفظی اس کا کوئی عمل نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ واو فا ثم حتی اما ام لا بل لیکن، یہ لفظاً عمل نہیں کرتے، معنی عمل کرتے۔ آگے بات سمجھ؟ اس وجہ سے جب یہ لفظاً عمل نہیں ہے تو گویا کہ بس ہم اس کی ترکیب یہی کریں گے، ثم تراخیہ مبنی بر فتح از مبنیات اصلیہ، یا ثم حرف از حروف عاطفہ مبنی بر فتح از مبنیات اصلیہ۔ یہ تراخیہ جو ہوتا ہے اس کو بھی عطف میں شمار کیا جاتا ہے۔ حروف عاطفہ 10 ہے نا، حروف عاطفہ کتنے ہیں؟ واو فا ثم، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ثم۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ ان میں ترتیب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا اور اس کے اندر ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے موتیوں کا بھاؤ بھی، ہیرے کا بھاؤ بھی، ٹھکریوں جی بولو، سمجھ آگے بات؟ المیاہ مفرد ہے یا جمع؟ جمع۔ اگر یہ جمع ہے تو پھر اس کا مفرد کیا ہے؟ ماؤن، اور ماؤن کی اصل کیا ہے؟ موہن۔ واو ساکن ما قبل مفتوح کو کیا کیا؟ الف میں تبدیل کر دیا، ماہن بن گیا، ہا کو خلاف کیا حمزہ میں بدل ماؤن، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ بتاؤ المیاہ مرفوع بضم لفظ کیوں ہے؟
استاد माने पढ़ गया, उस्ताद माने पढ़ गया, استاد माने पढ़ गया, हर जो शख्स लालच के कैद में पड़ गया। मुब्तदा मरफूबा जमा लफ्ज़न, आगे बात समझ, कौन सा कहाँ है पहले, तो अला खमसत अक़साम में बाद में ही आएगा, ज़ाहिर बात है, खबर है, मुताल्लिक साबित है कि खबर बन जाएगी, ठीक है। अला खमसत अक़साम, अला कौन से रूम में से है, 11 में से। हम सात मजरूर बकसर लफ्ज़न क्यों है, माने तनवीन क्यों है, अक़साम मजरूर बकसर लफ्ज़न क्यों है, मुज़ाफ़िल है होने की वजह से, मुज़ाफ़ ब मुज़ाफ़िल है, मजरूर जार, जार ब मजरूर एक खबर नहीं बना सकते, ठीक है। सबता के मुताल्लिक होकर बतवील मुफरद मालन मरफू खबर है, मुब्तदा मुब्तदा ब खबर जुमला इसमें खबरिया करती। कौन सा अलमया हो, अगरचे जमा है लेकिन उसको मुफरद की तावील में करेंगे, क्योंकि यूं नहीं कह सकते हम लोग क्या नाम है, मजरूर जार, जार व मजरूर खबर है मुब्तदा, कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। मुब्तदा और खबर के माबैन 5 चीजों में शर्त होती है और बाद में शर्त नहीं होती, जब खबर गैर मुश्तक हो और कुछ मकामात ऐसे। बात समझ आ गई है नहीं है? चलो जिस तरह अल कलिमतु लफ्जुन, अब वहां देखा आपने अल कलिमतु मुअन्नस है और लफ्जुन क्या है, मुब्तदा और खबर के माबैन यहाँ सवाल होता था, शायद आपके ज़हन में हो, मुताबिकत शर्त है तो यहाँ मुताबिकत नहीं पाएगी, हमने वहां क्या कहा था। चलो ये समझ आ गया है, हाँ सिवाय किसके है, सौदाए, सौदाए माने ख्याल। चलो ताहिरुम मुताहिरुन, अच्छा तकसीम के बाद, किसके बाद, तारीफ के बाद या तकसीम के बाद कि ये फलां चीज की इतनी किस्में हैं, तो जब जो उनके मकसम होंगे उनकी जो तरकीब निकाली जाएगी उसका तकरीबन एक ही तरीका है। अगर उसमें मरफूबा ज़मा लफ्ज़न पढ़ेंगे तो होवा निकल जाएगा, मंसूबा फता लफ्ज़न पढ़ेंगे तो आनी निकल जाएगा, मजरूर ब कसर लफ्ज़न पढ़ेंगे तो फिर पीछे वाला हर्फ देखेंगे, अगर वो मजरूर है तो फिर उसको मजरूर पढ़ेंगे, वो मुबदल में बन जाएगा, वो बदल बन जाएगा। ये 12 मरतबा बता चुका हूँ। लफ्ज़ियतुन व मानवियतुन, लफ्ज़ियतन व मानवियतन, लफ्ज़ियतुन, यही वही तरकीब है, यहाँ भी वही होगी ताहिरुन के साथ, ठीक है। ताहिरुन मुताहिरुन क्या लफ्ज़ है, गैरो मकरूहिन, ताहिरुन मुताहिरुन गैरो मकरूहिन, वहुवल माउल मुतलक अल मुतलक, नागहा पूरा लफ्ज़ है, नागहा माने अचानक, बर्बाद, इसलिए अचानक होगा बर्बाद, इसलिए अचानक, इसका माना अचानक, इसलिए अचानक होगा बर्बाद। बोलो समझ आ गई। ताहिरुन, अब ये तकसीम के बाद, इसके बाद हर मकसम को अलग अलग बयान किया जा रहा है। तकसीम के बाद, तकसीम समझते हो, कहते हैं फलां की इतनी किस्में हैं, कलिमा की 3 किस्में हैं, अब ये कलिमा की तकसीम हो गई और इसम फेल हर्फ कलिमा के मकसम हो गए। इसम की 3 किस्में हैं, सुलासी रुबाई खुमासी, तो इसम क्या हो गया मकसम और वो क्या हो गया मकसम, तो मकसम अलग अलग होते हैं, मकसम क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। फिर पानी 5 किस्म पर है, अब ये हो गई तकसीम, फिर पानी, अब ये मकसम है, अब इसके बाद वो 5 किस्में जो आएंगी वो क्या बनेगी मकसम, और हर मकसम को मुसन्निफ अलग अलग जिक्र बयान करेगा, और हर मकसम से पहले या तो होवा निकलेगा या आनी निकलेगा या फिर बदले मुबदल में बदल जाएगा, ठीक है। नहीं है समझ। अब ताहिरुन
मुताहिरुन गैर मकरूहन। ठीक है मेरे भाई। अब ताहिरुन बर वजन फाइलुन। नदीम माने हाँ, नदीम माने साथी, नदीम माने साथी, नदम माने शर्मिंदगी, नदीम माने साथी, नदम माने शर्मिंदगी। जी बोलो, समझ आ गई। ताहिरुन तो इसलिए मौसूफ मरफू बज़म लफ्ज़न लगता है शर्मिंदगी का, और मुताहिरुन लगता है शर्मिंदगी का सिफ। ठीक है। इसे तो लगता है शर्मिंदगी का क्या ताक के हुआ तो हो के हुआ तो हो के हुआ तो उसकी लज्जत से है शर्मिंदगी का साथ। बोलो, समझ आ गई या नहीं है मेरे भाई। तो मुताहिरुन ये हुआ तो उसकी ये हुआ तो मुताहिरुन से ये साथी आगे लिखा हुआ है गैरो गैरे। शर्मिंदगी से ये हुआ क्या से कितना इराब पड़ा है यहाँ पर? दो, तीन भी पढ़ सकते हैं। गैरा, ठीक है। क्या गैरो गैरा गैरे। अब अगर ये गैर रो पढ़े तो फिर ये ताहिरुन मुताहिरुन मौसूफ बसिफ मुब्तदा गैर मकरूह खबर। बोलो, समझ आई। अगर गैरा पढ़े तो फिर मुताहिरुन जुलहाल गैर मुजाफ मकरूह मुजाफ इलैह मुजाफ ब मुजाफ इलैह हाल। अगर गैरे पढ़े तो फिर मुताहिरिन बदल और गैर, ये मुताहिरिन मुबदल में नो और गैर बदल। बोलो, समझ आए। जब बंदे को तरकीब आ जाती है ना तो फिर वो खेलता रहता है तरकीब के साथ, वो खिलाड़ी बन जाता है, फिर इबारत का खिलाड़ी बन जाता है। होना भी ऐसा चाहिए। खबर बनेगी ताहिरुल मुताहिरुन, ठीक है। इसलिए इसलिए या नहीं, मफूल भी नहीं बनेगा, हाल बनेगा मुताहिरिन मुताहिरुन का। ये बदल बन जाएगा और मुताहिरिन मुबदल में नहीं। क्यों नहीं आ रहा? किसका? ताहिरिन। जब आप अक्सामिन से क्या बनाओगे? बदल। तो फिर क्या पढ़ोगे? ताहिरिन। फिर क्या पढ़ोगे? फिर अब बन गया, नहीं बना? जी ठीक है, समझ आ गया है। चलो, कौन सा? ये बहुत तफसीलिया हो गया। अल माउल मुतलको, अल माउल मुतलको। अब देखो, अल माउ मरफू बज़म लफ्ज़न, अल मुतलको मरफू बज़म लफ्ज़न। अल माउ मारफा, अल मुतलको मारफा मौसूफ और सिफ्त, ठीक है। सिफ्त मौसूफ पर सिफ्त खबर मुब्तदा हुआ, मुब्तदा ब खबर जुमला इसमें खबरिया गर्दी हुआ ज़मीर। हाँ, अलमाओ मुज़ाफ नहीं बनेगा। अलमाओ मुअर्रफ बिल्लाह में मुज़ाफ पर कभी अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? बन सकती है। हाँ, तो अब आ गया, नए आ गया आपके लिए, ठीक है। बाहर माने वास्ते है, बाहर माने वास्ते है। बोलो, समझ आ गई। वहुवल माउल मुतलक वल मुतलक। तो अल में याओ मरफू बज़म लफ्ज़न है, किसकी वजह से? मुब्तदा की वजह से।
अला खमसत अक़साम, खमसत मजरूर बकसर, इधर तवज्जो करो भाई, खमसत मजरूर बकसर लफ्ज़ क्यों है? अला की वजह से। मानो तनवीन क्यों है? अक़साम मजरूर बकसर लफ्ज़ क्यों है? शाबस। ताहिरून मरफू बदम लफ्ज़ क्यों है? मुब्तदा होने की वजह से। मुताहिरून मौसूफ मरफू बदम लफ्ज़ क्यों है? सिफ्त होने की वजह से। मौसूफ सिफ्त मुब्तदा। गैर मरफू बदम लफ्ज़ क्यों है? खबर होने की वजह से। मानो तनवीन क्यों है? मकरूह है मजरूर बकसर लफ्ज़ क्यों है? मुज़ाफ इलैहि हमेशा क्या होता है? वाव तफसीलिया हो गया, वह ज़मीर मरफू मुनफसिल या क्या कौन सा खबर होने की वजह से। हाँ मुज़ाफ बनेगा, मकरूह मुज़ाफ इलैहि बनेगा, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि खबर मुब्तदा मुब्तदा खबर, इसमें खबर कर दी। ठीक है, समझ आ गई भाई। वहुवल माउल मुतलक अल मुतलक, हुवा मुब्तदा, अल माउ मौसूफ, अल मुतलक सिफ्त, मौसूफ ब सिफ्त मुब्तदा व खबर, जुमला इसमें खबरिया। बोलो इतना काफी है। कल ये तरकीब सुनूंगा, तरकीब में रियायत नहीं है। फिर पानी 5 किस्म पर है, सुना दिया पीछे से बस दीवार के साथ टेक नहीं लगाओ। फिर पानी 5 किस्म पर है। पहली किस्म ये है कि वो पानी पाक हो, पाक करने वाला हो, मकरूह ना हो। बताता हूँ। पहली किस्म यह है कि वो पाक हो, जहां आपने होवा निकाला था, होवा की जगह अव्वल हा निकाल लो। ठीक है, जहां दूसरी किस्म आएगी सानी हा निकाल लो, जब तीसरी आएगी तो सालिस हा निकाल लो, जब चौथी आएगी तो राबिया निकाल लो, पांचवी आएगी तो खामिस हा निकाल लो। आगे बात समझ? नहीं तो फिर सबसे पहले सबके पीछे होवा निकाल लो, या सबके पीछे आने निकाल लो। अब समझ आ गई बात? चलो, पहली किस्म यह है कि वो पानी पाक हो, पाक करने वाला हो, मकरूह ना हो। ये तो माना है ताहिरुन के एतबार से। दूसरा माना, फिर पानी 5 किस्म पर है। मेरी मुराद वो पानी जो पाक हो, पाक करने वाला हो, मकरूह ना हो। तीसरा बर तकदीर सालिस, फिर पानी 5 किस्म पर है, यानी या जो। ठीक है, बदल और मुबदल मेनू के माबैन क्या होता है? या लफ्ज़ यानी आता है या लफ्ज़ जो। यानी यानी वो पानी पाक हो, पाक करने वाला हो, मकरूह ना हो, और वो मुतलक पानी है। फिर पानी 5 किस्म पर है। पहली किस्म ये है, आप लोगों ने यही माना करना है। पहली किस्म ये है कि वो पानी पाक हो, पाक करने वाला हो, मकरूह ना हो। पहली किस्म ये है कि वो पानी, सर्फ का सबक याद करो भाई, पाक हो याद हो गया है, पाक करने वाला हो ले आओ, मकरूह ना हो, और वो मुतलक पानी है। जी आप सुनाओ जरा। हम सत अक़सामिन, पानी 5 किस्म पर है। सुम्मल मियाह अला खमसात अक़सामिन, फिर खमसत अक़सामिन, फिर अक़साम, खमसत अक़सामिन अक़साम, फिर पानी 5 किस्म पर है। ताहिरुन व मुतहहिरुन गैर मकरूहुन व हुवल माउल मुतलक़। पहली किस्म ये है कि वो पानी पाक हो, पाक करने वाला हो, मकरूह ना हो, और वो पानी मुतलक पानी है, और वो मुतलक पानी है, और वो मुतलक पानी है। सुम्मल मियाहु अला खमसति अक़साम,
طاہر مطہر غیر مکروہ وہو الماء المطلق۔ پھر پانی 5 قسم پر ہے۔ میری مراد پہلی قسم یہ ہے کہ وہ پانی پاک ہو اور پاک کرنے والا ہو، مکروہ نہ ہو، اور وہ مطلق پانی ہو۔ ثم المياه على 5 اقسام اقسام۔ پھر پانی 5 قسم پر ہے۔ طاہر مطہر غیر مکروہ وہو الماء المطلق، کہ وہ پانی، پہلی قسم یہ ہے کہ وہ پانی پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مکروہ نہ ہو، اور وہ مطلق پانی ہو، مطلق پانی ہے۔